started actually reactions of benzene. So the concept under discussion is reactions of benzene. Acha, mostly benzene undergoes electrophilic substitution reaction. So reactions of benzene. So mostly benzene undergoes electrophilic substitution reactions. मैं अभी बताता हूँ कि what is electrophilic substitution reaction. So now one of the reaction of benzene is with reaction with halogens. ठीक है? So now reaction with halogens में the reagents means reactants. One of the reagent will be benzene and the other reagent will be halogen. Halogen is H2. So it can be F2, Cl2, Br2 or I2. Right? ये दो reagents होंगे. Benzene will react with halogens. So इस case में the catalyst would be either catalyst should be anhydrous, okay? Anhydrous catalyst will be used, anhydrous AlCl3. बेटा अगर chlorine is reagent, so then you use AlCl3 as catalyst, right? अच्छा, अगर bromine reagent है, तो then use AlBr3 as catalyst. और अगर iodine reagent है, तो फिर AlI3 use करना है as catalyst. अगर फ्लोरीन रिएजेंट है तो फिर AlF3 यूज करना है एज कैटलिस्ट. राइट? सर एनहाइड्रस क्या मतलब? एनहाइड्रस का मतलब है मॉइस्चर फ्री. सो कैटलिस्ट वर्क्स वेल इफ इट इज मॉइस्चर फ्री. ठीक है? और कंडीशन विल बी हीट द रिएक्शन मिक्सचर टू प्रोसीड. अच्छा बेटा, इसमें आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं नेम ऑफ दिस रिएक्शन. सो नेम ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Now what happens in the reaction? This is benzene. ठीक है? बेटा ये बात तो आपको पता है ना कि बेंजीन के एवरी कार्बन हैज वन हाइड्रोजन. नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ these hydrogen atoms, just if for the sake of revision I'm telling you that every carbon in benzene has one hydrogen. ठीक है? Okay, so how to proceed? This is benzene. Okay, up, and this is halogen. Okay, let us say a halogen is Cl2 and catalyst is AlCl3. condition is heat. ठीक है? अच्छा, अब देखो one of the H, this H will pick one of the Cl. The hydrogen will pick one of the chlorine. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? If this hydrogen picks one of the Cl, so one of the product will be HCl. ठीक है? One of the product is HCl. Now the remaining Cl will be substituted here. ठीक है? Remaining Cl will be substituted here. And this is actually chlorobenzene. Chlorobenzene will be formed. Any question?
नहीं सर। ठीक है, so this is actually electrophilic substitution reaction. तो अगर if the same reaction is proceeded with bromine, so what catalyst you will use? AlBl3, AlBl3R3। जी 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 बेटा। सर डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो वगैरह बन सकते हैं बेंजीन के साथ? जी डाइक्लोरो भी बन सकते हैं, ट्राइक्लोरो। जब एक दफा क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो उसके बाद फिर फर्दर क्लोरीन भी अटैच हो सकते हैं। सर लेकिन कैटलिस्ट सेम रहेगा? कैटलिस्ट सेम रहेगा, यस। ठीक है सर। कैटलिस्ट सेम रहेगा और बाद सिचुएशन में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे चल के मैं फिर आपको बताऊंगा कि जब एक ग्रुप अटैच होता है तो उसके बाद जब दूसरा ग्रुप अटैच होना होता है तो उसके कुछ रूल्स हैं। ये थोड़ा आगे चल के मैं बताऊंगा। बेंजीन पे एक ग्रुप तो अटैच आपने करवा दिया, ये वाला Cl, ठीक है। अब जब दूसरा कोई ग्रुप, कोई भी क्लोरीन या कोई और ग्रुप अटैच होना हो बेंजीन पे तो उसके एक रूल है, वो रूल हम पढ़ेंगे, देन फिर आपको कंप्लीटली पिक्चर क्लियर होगी। अभी मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? ब्रोमोबेंजीन। हाँ, तो देखो वन ऑफ द H will pick one of the Br to make HBr and the other bromine will get attached here, so it's bromobenzene. अब इस bromobenzene can be written like this as well. All the 6 positions of carbon atom of benzene are identical. ये बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं 6 के 6 सिमेट्रिक हैं, तो इस ब्रोमीन को आप कहीं भी अटैच कर सकते हो टू मेक ब्रोमोबेंजीन, राइट? एनी क्वेश्चन बेटा? तो नहीं सर। concept is that whenever you have to attach halogen on benzene, so you will use diatomic halogen and corresponding catalyst. ठीक है? For example, beta, if you have to produce this thing, तो इसके reactants क्या होने चाहिए? Reactant should be benzene plus Cl2. The catalyst should be AlCl3 and heat. ठीक है? This is electrophilic substitution reaction with halogen. ओके, इन रिएक्शंस को ध्यान में रखें, एंड में हम समराइज करेंगे। अच्छा, सेकंड रिएक्शन इज विद नाइट्रिक एसिड। Second reaction is with HNO3, benzene's reaction with nitric acid. So now इस केस में reagents will be, one of the reagent will be benzene, the other reagent is HNO3. Okay, and conditions beta, heat under reflux, or you can write 55 degrees Celsius. Otherwise, you can write heat under reflux. Both are correct. Heat under reflux. And better the catalyst is H2SO4. Just इस डेटा को याद रखें, अपने जहन में रखें। तो नाइट्रिक एसिड का अगर बेंजीन से रिएक्शन होना है तो कैटलिस्ट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? अच्छा, रिएक्शन नेम क्या होगा? सेम रिएक्शन नेम होगा। Reaction name will be electrophilic substitution reaction. This is electrophilic substitution reaction. ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि what happens जब आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करें। बेटा मुझे बताएं, अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आई कैन मेक माई स्पीड स्लो। तो देखें, दिस इज बेंजीन and this is nitric acid. The catalyst is H2SO4, right? And condition is heat under reflux of 55 degrees Celsius. अच्छा, इस nitric acid को I can write like this as well.
बेटा नाइट्रिक एसिड को इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं. डज इट मेक सेंस? अगर नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिखें, OH इज पार्शियल नेगेटिव और ये NO2 इज पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है. बॉन्ड पोलैरिटीज की ना भी पता हो तो HNO3 को वी कैन राइट इट लाइक दिस. और बेंजीन पे हाइड्रोजन इज अटैच्ड. ठीक है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है. तो व्हाट हैपेंस कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH अगर बॉन्ड बनाए तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? वाटर. Water. One of the product is water, H2O. So which group is left behind? The NO2 group is left behind. So that NO2 group will be substituted here. So this is nitrobenzene. This is nitrobenzene. तो अब जब यह नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करना हो तो the reagent will be nitric acid and catalyst will be sulfuric acid. So nitric acid converts benzene into nitrobenzene. Right? I hope कि ये याद रहेगा सबको. नाइट्रोबेंजीन अगर प्रिपेयर करना हो तो you have to react benzene with nitric acid in the presence of sulfuric acid as catalyst. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. ये दो रिएक्शन हो गए. ठीक है, आई होप जहन में रहेगा. कोई क्वेश्चन है किसी का? इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये मैंने लिखा हुआ ऊपर देखो, रिएक्शन का नेम मैंने लिखा हुआ. कोई पिछले वाला है? जी कोई पिछले वाला है? नहीं, पिछले वाला नहीं. HNO3 के साथ भी रिएक्शन का नेम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, पिछले वाला भी पीछे भी यही था. यस, तो बेंजीन के मोस्टली रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है सर. बेंजीन के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. सिर्फ एक रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, मैं रिवाइज करवा दूंगा. ठीक है, ओके. ना बेटा थर्ड रिएक्शन जो है बेंजीन का, उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. अच्छा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एक केमिस्ट था और उसने ये रिएक्शन प्रपोज किया, तो इस वजह से इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहते हैं. ये भी इस रिएक्शन का नेम है और ये भी इस रिएक्शन का नेम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद हैलोएल्केन. ये दोनों इस रिएक्शन के नेम हैं. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. बेटा ये इट शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अच्छा, अब इस केस में रिएजेंट क्या होंगे? सो वन ऑफ द रिएजेंट इज बेंजीन एंड द अदर रिएजेंट इज हैलोएल्केन. बेटा हैलोएल्केन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RX इज हैलोएल्केन, या इसको हम केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती हैं. जैसे एल्काइल अगर CH3 है, CH3Cl. ठीक है, क्लोरोमीथेन या क्लोरोईथेन, दिस इज आल्सो हैलोएल्केन. सो वैरायटी ऑफ हैलोएल्केन आप ले सकते हो. आप हैलोएल्केन ये भी ले सकते हो, CH3Br, C2H5Br. ठीक है, C3H7Br. ठीक है, आप हैलोएल्केन ये भी ले सकते हो, CH3I, C2H5I, etc. तो variety of halogenoalkane can be taken as reagent.
और दूसरा रिएजेंट विल बी बेंजीन। ठीक है बेटा। उसके बाद है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बेटा इट डिपेंड्स। अगर आप क्लोरो एल्केन ले रहे हो तो क्लोरो एल्केन के लिए कैटलिस्ट विल बी AlCl3। अगर आप ब्रोमो एल्केन ले रहे हो तो कैटलिस्ट विल बी AlBr3। अगर आप आयोडो एल्केन ले रहे हो तो कैटलिस्ट विल बी AlI3। अगर आप फ्लोरो एल्केन ले रहे हो तो फिर AlF3 होगा कैटलिस्ट। और कंडीशन विल बी हीट। हीट कंडीशंस में या हीट करके रिएक्शन विल बी प्रोसीडेड। राइट बेटा। तो अब दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, ठीक है। और वी आर रिएक्टिंग इट विद लेट्स से क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरोमीथेन से रिएक्ट कर रहे हैं हम। सो अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन इज अवेलेबल प्रेजेंट विद द कार्बन। कोई भी आप हाइड्रोजन कंसिडर कर सकते हो। तो दिस वेरी हाइड्रोजन विल पिक दिस वेरी Cl। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? HCl। हाँ, दिस हाइड्रोजन और ये Cl मिलके क्या बनाएंगे? HCl। राइट। अच्छा, नाउ CH3 इज लेफ्ट बिहाइंड। ये वाला CH3 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये CH3 will be substituted here। तो आपके पास क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बनेगा। तो असल में मिथाइल इज एल्काइल और एल्काइल बेंजीन पे अटैच हो रहा है। दैट इज वाई इस रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी अगर किसी एल्काइल ग्रुप को बेंजीन पे अटैच करना है तो उस एल्काइल का हेलोजिनो अल्केन लिया जाए और कैटलिस्ट लिया जाए और हीट की जाए। तो यू कैन अटैच एल्काइल ऑन बेंजीन। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं क्वेश्चन है। देखो, अगर के दिस इज बेंजीन, ठीक है, और दिस इज CH3 CH2 एंड Br, तो कैटलिस्ट अब क्या लेना चाहिए? AlBr3। AlBr3 और हीट कंडीशंस होनी चाहिए। अब व्हाट विल हैपन हियर कि इथाइल हाइड्रोजन एटम, बेंजीन। हाँ, दिस हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं बेंजीन का, एनी हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन एंड दिस हैलोजन, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा HBr। What will happen? ये this alkyl is left behind. So this alkyl will be substituted here on benzene. This is CH2, this is CH3. ठीक है। तो अब ये एक्चुअली बेंजीन की एल्काइलेशन हुई, और अगर स्पेसिफिक कहें तो बेंजीन की इथाइलेशन हुई। इथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन। ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि अगर हमने ये प्रिपेयर करना हो, यानी एल्काइलेशन ऐसे हुई हो, अगर हमने ये प्रिपेयर करना है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या लेने चाहिए? सर डाइब्रोमो या सर डाइक्लोरो होगा। ब्रोमीन। इस केस में हमें कौन से रिएक्टेंट लेने चाहिए सो दैट वी गेट दिस प्रोडक्ट? सर वही जो कह रहे हैं, सेफ डाई डाइब्रोमो या डाइब्रोमो, वो तो डाइक्लोरो। डाइब्रोमो कह रहा है। डाइब्रोमो क्यों लेंगे बेटा? नहीं सर, 2 ब्रोमो। हाँ, 2 ब्रोमो ले सकते हैं। 2 ब्रोमो क्या? मतलब सर सेकंड कार्बन पे हेलोजन अटैच हो।
हाँ, एक रिएजेंट तो बेंजीन होना चाहिए ना, ठीक है। और दूसरा सर रिएजेंट, C3H7Br2। हाँ अच्छा, Br2 नहीं बेटा, सिर्फ Br या Cl भी ले सकते हैं। देखो ये अगर मैं ऐसे लूं हैलोजिनो अल्किन को, इधर मैं Br प्लेस कर दूं, डज इट मेक सेंस? और इधर मैं Br की जगह Cl भी ले सकता हूं, आप Cl भी ले सकते हो, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि दिस हाइड्रोजन और दिस Cl, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा HCl। तो जो रिमेनिंग ग्रुप है, दैट रिमेनिंग ग्रुप विल बी अटैच्ड हियर, बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, राइट। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, प्रोपाइल बेंजीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। समझ आई बेटा? जी तो इस सर। रिएक्शन का, और कैटलिस्ट ऑब्वियसली आप AlCl3 कैटलिस्ट लेंगे और हीट करेंगे। तो अब इस रिएक्शन का पर्पस है कि एल्काइल ग्रुप को हम बेंजीन पे अटैच करें, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को बेंजीन पे अटैच करने के लिए आपको ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करनी होगी। एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। सर वो Cl के केस में यही वाला हाइड्रोजन होगा सिर्फ? हाइड्रोजन कौन सा बेटा? सर ये जो सर्किल हुआ हुआ है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? नहीं, कोई भी कर सकते हैं बेटा, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते। ये जो इसकी 6 की 6 पोजीशंस है ना, देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन सिमेट्रिक हैं, ये सिमेट्रिक पोजीशंस हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी ले सकते हैं, आप ये वाला हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से ये अटैच, क्योंकि ये वाला जो बेंजीन है बेटा, जो प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा आप रोटेट करें, इसकी 6 की 6 पोजीशन सिमेट्रिक हैं, इस तरह से देख लो, ठीक है सर। समझ आई? देखो अगर मैं यूं लिखूं ना ये, तो दिस इज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर मैं इसको यूं लूं तो भी ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन अब भी है। अच्छा, अब जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा ना, तो इधर से नंबरिंग करूंगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा जिस पे सब्स्टिट्यूशन है। मैं इस पे नंबरिंग करूंगा तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे पोजीशन सिमेट्रिक हैं, और सिमेट्रिक इसलिए हैं कि आपने देखो पढ़ा था कि बेंजीन इस तरह से है ना, ये हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है। सारी 6 की 6 पोजीशन जो बेंजीन की हैं वो सिमेट्रिक हैं, लाइक दिस। तो इसलिए कहीं भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। अभी जी तक मैंने जो रिएक्शंस करवाए हैं उसको बेटा मैं समराइज अगर कर लूं, तो फिर मैं अगली एक चीज बता रहा हूं आपको। ये बेंजीन है, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अगर के इसको मैंने ब्रोमीन से रिएक्ट करवाना हो, और फिर दूसरे केस में अगर मैंने इसको HNO3 से रिएक्ट करवाना हो, और तीसरा मैंने आपको ये बताया CH3CH2Br, ठीक है। अब मुझे बताओ इस फर्स्ट केस में कैटलिस्ट क्या होगा? AlBr3 प्लस AlBr3 हीट, और हीट, और प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन हाँ, और वन ऑफ द HBr। हाइड्रोजन HBr बाय प्रोडक्ट होगा, और यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो कहीं भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में कैटलिस्ट क्या होगा? HNO2 कैटलिस्ट क्या होगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट होगा, और कंडीशन 55 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस या हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। अब इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनेगा। HNO3 से नाइट्रोबेंजीन और वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और थर्ड केस में कैटलिस्ट क्या होगा?
AlBr3 AlBr3, ठीक है, और हीट। और हीट हो जाएगी। और इस केस में एल्काइलेशन होगी, यानी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। HBr इज द बाय प्रोडक्ट, और एल्काइल में कौन सा वाला एल्काइल अटैच होगा? इथाइल इथाइल। अटैच। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये 3 रिएक्शन पढ़ाए हैं बेंजीन के। ये पहला वाला रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटा पेपर में ऐसे नहीं लिखना, कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है। ये ESR मैं अभी लिख रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, आपने एग्जाम में इसको कंप्लीटली लिखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम में पूरा आप नेम लिखें। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और थर्ड वन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और थर्ड वन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहते हैं, राइट? अच्छा, एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, you know what is this acyl chloride? नहीं सर। Acyl chloride was not there in AS. AS में acyl chloride नहीं था। Now what is acyl chloride? अच्छा, you know carboxylic acid? आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O and OH, ठीक है। तो अब इन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक का OH, अगर कार्बोक्सिलिक का OH इज रिप्लेस्ड विथ Cl, कार्बोक्सिलिक का OH इज रिप्लेस्ड विथ Cl, then this compound is acyl chloride. This is acyl chloride, right? When OH of carboxylic is replaced with Cl. सर HCl से रिएक्ट करेंगे ताकि वाटर बन जाए। इसके रिएक्शन फिर मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे करते हैं। अभी मैं जनरली बता रहा हूं कि अगर OH की जगह Cl हो तो देन दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसमें वैरायटी ऑफ R हो सकते हैं, R ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं R की जगह CH3 लूं तो दिस इज एसाइल क्लोराइड। R की जगह अगर मैं इथाइल लूं तो भी ये एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड इज जनरल नेम। अगर मैं R की जगह C3H7 लूं तो भी ये एसाइल क्लोराइड है, एटसेट्रा एंड सो ऑन, ये सारे एसाइल क्लोराइड हैं, राइट। एसाइल क्लोराइड आपको समझ में आया कि होता क्या है? सर तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन तीनों को? इन तीनों के फिर नेम्स हैं। ये पहला वाला एथेनॉइल क्लोराइड है, दूसरा वाला प्रोपेनॉइल क्लोराइड है। ये फिर नेम मैं बाद में बताऊंगा अगले चैप्टर में। ठीक है अभी सिर्फ ये समझें कि जनरल नेम इनका एसाइल क्लोराइड है। अभी बस जनरली आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। एसाइल क्लोराइड क्या है? वो फंक्शनल कार्बोक्सिलिक के फंक्शनल ग्रुप में OH की जगह अगर Cl आ जाए तो दिस इज एसाइल क्लोराइड। इसको एब्जॉर्ब करें बेटा, ये नया फंक्शनल ग्रुप है, AS में नहीं था, राइट। ये एसाइल क्लोराइड है आपके सामने। ओके, कोई क्वेश्चन बेटा? ओके ओके, तो अब बेंजीन का फोर्थ रिएक्शन बेटा देखिए, एंड दैट फोर्थ रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज फोर्थ रिएक्शन एंड दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेटा अब इस केस में रिएजेंट्स विल बी, one of the reagent is benzene and the other reagent is acyl chloride. Second reagent is acyl chloride. तो acyl chloride बेटा कैसे होगा? ये C double bond O और Cl. This is acyl chloride. ठीक है, ये reagent है और catalyst will be, चूंकि Cl इन्वॉल्व है रिएजेंट में तो कैटलिस्ट विल बी AlCl3। ठीक है, और कंडीशंस विल बी हीट कंडीशन में रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो अब बेंजीन का अगर एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो दिस इज बेंजीन and this is acyl chloride. Catalyst is AlCl3. Heat conditions में अब देखो this hydrogen is attached, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl, इससे क्या बनेगा बेटा? इस हाइड्रोजन और इस Cl से क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, तो अब बताओ बेंजीन पे ये जो रिमेनिंग ग्रुप है ये कहां से अटैच होगा? सर सी लगेगा। सी लगेगा, ये वाला सी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सर जो उससे C क्लोरीन है, हटा है। हाँ ये सी जो है ये बॉन्ड डेफिशिएंट है, ये वाला सी अटैच होगा बेंजीन पे, ये वाला कार्बोनल वाला सी। कार्बोनल वाला जो सी है वो बॉन्ड डेफिशिएंट है, तो इस तरह ये कार्बोनल वाला सी इधर अटैच करें और इस कार्बोनल वाले सी के साथ आर भी अटैच है। राइट, तो ये जनरली आपके पास जो प्रोडक्ट है ये कीटोन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो बना है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बना। राइट, फिर देखो ये बेंजीन है और ये है एसाइल क्लोराइड CH3 CH2 C double bond O Cl. This is acyl chloride. Catalyst is AlCl3 and heat. क्या प्रोडक्ट होगा? One of the hydrogen, this hydrogen and this Cl. इससे क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो what will happen? बेंजीन पे कौन सा एटम अटैच होगा इस रिमेनिंग ग्रुप में से? ये कार्बन एटम अटैच होगा, क्योंकि दिस कार्बन ऑफ कार्बोनल इज बॉन्ड डेफिशिएंट। तो ये कार्बोनल है एंड देन CH2 एंड देन CH3। यस जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, ये 4 थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के। ठीक है, और 5th रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। ये 4 हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और द 5th रिएक्शन इज रिडक्शन। 5th इज रिडक्शन। ओके, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए बेटा रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बेंजीन की रिडक्शन करनी है तो विच रिड्यूसिंग एजेंट शुड वी यूज? सर नहीं याद। हाइड्रोजन यूज करें। ठीक है, हाइड्रोजन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट और कैटलिस्ट विल बी निकल कैटलिस्ट विल बी यूज्ड और कंडीशन विल बी हीट कंडीशंस में रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो दिस इज बेंजीन। So how many moles of hydrogen should be taken? 3 moles of hydrogen should be taken. ठीक है, 3 moles of hydrogen लें
और निकल कैटलिस्ट है और हीट कंडीशंस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? cyclohexane. Cyclohexane will be the product. Cyclohexane will be the product. ये बेटा समझ आई सबको कि ये कैसे बना? जी सर. हाँ सर रिंग के फ्री इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कनेक्ट हो. हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो बेंजीन है, बेंजीन इज लाइक दिस. बेंजीन इज लाइक दिस के ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट फॉर एवरी कार्बन. तो पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है ना, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं. ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है. हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है. और 3H2 का मतलब है 6 हाइड्रोजन एटम्स. सो पाई बॉन्ड विल ब्रेक. ठीक है, पाई बॉन्ड इन बेंजीन विल ब्रेक. ठीक है, तो दिस इज एक एक हाइड्रोजन बेटा पहले से अटैच है. एंड व्हाट हैपेंस कि जब हाइड्रोजनेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है तो ये दिस इज 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन एटम्स. तो एक एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा. ठीक है, एक एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा. एंड दिस इज एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन. जी बेटा, तो ये बेंजीन के 5 रिएक्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं जितनी. ये लास्ट समझ नहीं आई. जी बेटा, ये लास्ट वाला समझ नहीं आया. ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? अच्छा बेटा, इसके लिए जो है ना, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी पिछली वाली, कि ये सही. बेंजीन का ये आपको लेफ्ट पेज समझ नहीं आया होगा, ये वाला स्ट्रक्चर. जी सर. हाँ, ये पिछली रिकॉर्डिंग्स आप देखें ना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैंने ये एक्सप्लेन किया, फिर आपको ये क्लियर होगा. ये डायग्राम रिकॉर्डिंग्स मैंने अपडेट कर दी हैं. यस सर. वैसे जितनी रिकॉर्डिंग्स आपने अभी तक मतलब जितनी वीडियो लेक्चर्स आपने अभी तक रिकॉर्ड किए कर लिए वो सारे गूगल क्लासरूम पे सारे अपलोड मैंने सारे अपलोड हैं गूगल क्लासरूम पे. यानी आप बिल्कुल द वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हो, जब सेशन शुरू हुआ था? नहीं, एएस ऑर्गेनिक से. हाँ, A2 और बेंजीन मैंने शुरू किया था A2 ऑर्गेनिक में. तो बेंजीन की सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं जो मैंने पढ़ाया. एएस ऑर्गेनिक की सिर्फ 3 वीडियोस हैं. AS ऑर्गेनिक की 3 वीडियोस हैं. यस, वो हमारे पास टाइम नहीं था तो हम प्रोसीड नहीं कर पाए. ठीक है, लेकिन AS ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस में ये A2 के साथ साथ करवाता रहूंगा. A2 केमिस्ट्री हम आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो उसमें AS के रिएक्शंस में मैं रिवाइज करवाता रहूंगा. राइट बेटा, आप इस सारे डिस्कशन को एक दफा फिर समराइज करें. जितना आपका ये बेस स्ट्रांग होगी ना, उतना आपके लिए इजी होगा बेंजीन को मैनेज करना. मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया? 5 रिएक्शंस पढ़ाए हैं. अगर हैलोजन से रिएक्शन हो तो AlCl3 कैटलिस्ट लें और हीट करें. एक रिएक्शन ये था. दूसरा नाइट्रिक एसिड से, तो कैटलिस्ट फिर होगा H2SO4 और हीट. थर्ड इज एल्काइलेशन. हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं. इट्स ओके, हीट और हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिख सकते हैं. इट्स ओके, या 55 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं. 55 डिग्री सेल्सियस में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपको याद हो जाए. ठीक है. थर्ड बेटा, हैलोजिनो अल्केन लें तो इससे एल्काइलेशन होगी. अब कैटलिस्ट से AlCl3 और हीट करें. फोर्थ मैंने पढ़ाया एसाइलेशन. एसाइलेशन में आपने एसाइल क्लोराइड लेना. ये एसाइल क्लोराइड है. कैटलिस्ट से AlCl3 और हीट. और बेटा फिफ्थ मैंने रिडक्शन करवाया आपको. ठीक है, जिसको जनरली हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं. तो H2 से, और फिर इसमें निकल कैटलिस्ट था और हीट थी. ये 5 रिएक्शंस बिल्कुल आपने अच्छी तरह, आपको अगर आते हो तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी जो ट्विस्ट है वो आप हैंडल कर सकोगे. ये बेस है बिल्कुल.
अगर आपकी बेस स्ट्रांग है तो आप हैंडल कर सकते हो पास पेपर क्वेश्चन को। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्लोरोबेंजीन HCl बनेगा, सेकंड केस में नाइट्रोबेंजीन और वाटर बनेगा, यानी HNO3 से नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अभी एल्काइलेशन में बेटा CH3 इधर अटैच होगा और HCl बनेगा। फिर एसाइलेशन में, एसाइलेशन में आपने कार्बोनल को अटैच करना है, ये कार्बोनल को अटैच करना है बेंजीन से, क्योंकि कार्बोनल से Cl जाएगा, तो Cl और H से HCl बनेगा। ठीक है। और द लास्ट वन इज रिडक्शन, इससे साइक्लोहेक्सेन बनेगी। लास्ट वन इज रिंग हटानी है। जी हाँ, रिंग हटानी है, सॉरी ये रिंग हटानी, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है। ये लास्ट वन इज रिडक्शन, बाकी सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये बाकी वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अच्छा बेटा, ऑब्जर्वेशन आप कुछ बता सकोगे? अगर ऑब्जर्वेशन हमें लिखनी पड़े। सर वाइट फ्यूम्स वाइट, हाँ, जहां जहां HCl आ रहा है वहां आप वाइट फ्यूम्स लिख सकते हो। वाइट फ्यूम्स ऑफ HCl, इसकी ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो। इसी तरह ये वाइट फ्यूम्स आप बता सकते हो। ये HCl भी will appear as white fumes। ठीक है, बस ये बेंजीन के 5 रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ठीक है ठीक है सर। सो